Hello, my dear children. Welcome to maths class. And today we are starting with our chapter number 4, and that is fractions. Fractions का मतलब क्या होता है? It is part of whole. तो पूरी जो चीज है हमारे पास उसमें से एक इक्वल पार्ट को उठा लेना या दो इक्वल पार्ट्स को, जितने भी इक्वल पार्ट्स को उठाना, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर लिखा है कि अ फ्रैक्शन शोज पार्ट ऑफ अ होल. A whole can be a region or group. So for example, I have this group of say 4 fingers, okay? And I am closing one finger. So which fraction of finger is closed? So this is 1 out of 4. So 1 by 4. And which fraction of fingers are open? So 3 out of 4 fingers are open. So 3 by 4 is the fraction. So here in this square, one part is colored. So 1 by 4 is the shaded part, okay? And जो 1 है वो numerator है and 4 is the denominator. Denominator आप याद रखेंगे, down से याद रखेंगे denominator. So जो number नीचे लिखा जाता है that is denominator. That is denominator का मतलब हुआ whole. And the part that we are talking about will be written above and it is called numerator. So you have to write the correct fraction. Half shaded part ये है. So this is 1 by 2. 1/3 is this. 2/3 is this. 1/4 and 3/4. So this is how we read the fraction. ऊपर वाले नंबर को हम रीड करते हैं कार्डिनल नंबर की तरह, नीचे वाले को रीड करते हैं ऑर्डिनल नंबर की तरह. So 3/4. Okay. Now fractions on the number line. ये 0 से 1 जो है हमारा 1 तक होल दिखा रहा है और उसका जो बीच में जस्ट हाफ पे अगर आ गया, सो दिस इज 1 by 2, दिस इज 1 by 2 एंड हाफ. सो कीप हाफ्स, क्वार्टर्स एंड एट्स इन माइंड. हाफ्स, क्वार्टर्स, क्वार्टर्स का मतलब हुआ 1 by, हाफ का मतलब हुआ 1 by 2 और एट्स का मतलब हुआ 1 by 8. सो अगर हम एक पूरे होल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, ईच पार्ट विल बी 1/3, 1/3, 1/3. सिमिलरली होल को अगर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, इक्वल पार्ट्स बेसिकली, सो ईच पार्ट इज 1/4. ओके. Now, all the above are the fractions of 1. In the same way, we can represent the fractions of all numbers on a number line. Now, look at the fraction. 3 by 4, 6 by 5 and 8 by 2. Alright, so 3 by 4. 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4. है ना? 6 by 5. 6 by 5 यहाँ पर आया. 0 से 10 by 5 के बीच में 6 by 5 is this. And 8 by 2 हमारा, अगर हम 10 by 2 तक लेते हैं 0 by 2 से, so 10 by 2, 8 by 2 is here. Now what are the types of fractions? There are proper fractions. Proper fractions वो जिसमें जो नीचे वाला denominator है that is bigger than the numerator. मतलब जो whole हमें दिखाया है, whole is bigger. ठीक है? In this fraction the numerator is less than the denominator. And these are called proper fractions and these are the examples. Value of all proper fractions is always less than 1. ठीक है. सो प्रॉपर फ्रैक्शंस का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से क्या होता है? कम होता है. नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो इन दिस फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर. सो जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल या ज्यादा हो वो क्या हुआ? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. और इनकी जो वैल्यू होती है ईदर इट इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1. जैसे जहां पर ऊपर और नीचे सेम होता है that is 1. Mixed fraction. A mixed fraction has a whole number except 0 mixed with a proper fraction. ठीक है. तो एक मिक्स्ड नंबर ऐसा होता है कि पहले हमारे पास एक होल है और फिर एक होल का एक पार्ट है. सो जैसे ये 1 and this is 1 by 4. So this is mixed fraction. तो one whole except 0 and one proper fraction. So the whole number is 2. जैसे ये 2 और ये half glass, so हम बोलते हैं ना 2.5. So 2.5, that is a mixed fraction. Now 2.5 glasses of orange juice, 2.5 centimeter, 2.5 sheet of
chart paper. So we can write a mixed fraction as an improper fraction and vice versa. ठीक है, तो जो mixed fraction है वो जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं वापस से फ्रैक्शन में, नॉट इन मिक्स्ड, इन फ्रैक्शन, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. हाउ डू वी डू दैट? सो दिस इज द मेथड. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि दिस इज 8/5. ठीक है, सो पिक्टोरियली हाउ आर वी showing this? This is 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 and 5 out of 5. ठीक है, और यहाँ पर 1 होल है और यहाँ पर 3/5. So 8/5 can be represented as 1 3/5. How do we actually do it? So basically we always apply this method. हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है. हाउ डू वी कन्वर्ट इट इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? वी विल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय द होल नंबर and then we will add the numerator, that is 8, and then write numerator upon denominator, which is 5. All right, let's take one more example. If we have 2 1/2 and we have to convert it into the improper fraction, what will we do? This denominator multiplied by the whole number plus numerator is equals to 5, and now we will write 5 as the numerator and denominator is 2, so the improper fraction over here is 5/2. And if we have the improper fraction, we can convert it into a mixed fraction. How? Just by dividing the numerator by the denominator. So it is 2 2s are 4 1. And what will we do? We will shift it. This is the quotient, divisor, and the remainder. So what will we do? We will write quotient, remainder upon divisor. This is how we do it. So we will write 2 1/2. This is the method of converting a mixed fraction into improper and improper fraction into a mixed fraction. How can this be shown on a number line? So a mixed fraction can also be shown on the number line as 1 and 3/5, which is 8/5. है ना, क्योंकि अगर हम 8/5 कर रहे हैं तो 0 से 10/5 गए हम. 5/5 is 1 and 1 और उसके बाद 3/5 और, so it is 8/5 or 1 3/5. So jump, this is written in English, the explanation, whatever I have told you about the mixed fraction on the number line. Now you have to write 3 1/6 as a mixed fraction. तो 3 का मतलब हुआ 3 whole numbers. So 3 whole numbers यहाँ पर आ गया and then 1 out of 6. और इसका मतलब क्या हुआ हमारा 19/6. कैसे? 6 multiply by 3 plus 1, that is 19 and divided by like upon 6. ठीक है, so this is 6/6, 6/6, 6/6 and this is 1/6. Now therefore 3 1/6 is 3 plus 1/6, 6/6 plus 6/6 plus 6/6 plus 1/6. तो यहाँ पर बस ये आपको शो कर रखा है, और this method is this method that I have already explained you. Now converting improper fractions into mixed fractions, वही हम लोग डिवाइड करके बस उसको लिख लेते हैं जैसा आपको पीछे भी बताया है. For example, you have to convert 11/4 into a mixed fraction. तो तरीका वही है. 11 is our dividend and 4 is our divisor. So 4 2s are 8 and 3. अब हम शिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे. इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ लाएंगे. So 2 becomes the whole number, 3 becomes our numerator and 4 becomes our denominator. So the mixed fraction is 2 3/4. All right.
So for example, you have to convert 10 by 3 into mixed fraction, 10 being our dividend, 3 being our divisor, 3 3s are 9, we minus and we get 1. We do the shifting process. So 3 आया as a whole number, 1 गया ऊपर numerator, 3 आया नीचे denominator, and the mixed fraction is 3 1 by 3. Alright. Now converting mixed fractions into improper fractions. तो mixed fraction हमारा जैसे अभी हमने किया था कि 3 2 by 5 है, जैसे कि हमारा यहाँ पर जो 3 है हमारा that is our quotient, 5 is our divisor and 2 is our remainder, है ना. तो अब हमने क्या करना है, बेसिकली quotient multiply by divisor is equal to remainder plus remainder is equal to our dividend, है ना. तो अब हम क्या करेंगे, 5 multiply by 3 plus 2 is 15 plus 2 is 17. So 17 becomes our numerator और denominator हमारे पास 5 है ही. So this is 17 by 5. So they have shown you this shifting process also, showing through the arrow. Again 2 1 by 9 को आपको improper fraction में convert करना है. 9 multiplied by 2 plus 1 is equal to our numerator or our dividend. So it becomes 19 and the denominator is 9. So this is our improper fraction. Now let's find equivalent fractions. Equivalent fractions का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होते हैं कि रीजन हमारे पास ओवरऑल सेम होता है, बट उसमें से हम पार्ट्स जो हैं वो कम या ज्यादा कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 चॉकलेट्स हैं. आप तो बड़े हो, आपका भाई सपोजिंगली आपसे छोटा है, वो अभी वो नहीं जानता कि बड़ा पीस और छोटा पीस क्या होता है. उसको सिर्फ काउंटिंग ये पता है कि मेरे पास 2 चॉकलेट है या मेरे पास 1 चॉकलेट है. तो आपकी मम्मा ने क्या किया, दोनों के लिए सेम चॉकलेट्स लाया, सेम साइज का, और आपको पूरा 1 चॉकलेट दे दिया, 1 out of 1. आपके भाई के लिए उन्होंने क्या किया, इस चॉकलेट को 2 में डिवाइड कर दिया और उसको बोला ये लो 2 चॉकलेट्स. जबकि उसको मिल तो क्या रहा है, उसको मिल रही है सेम ही साइज की चॉकलेट, है ना. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे ही काम करती है. अब अगर किसी के पास ये 2 पीस हैं चॉकलेट के और इस 2 के अगर 4 भी पीस कर दिए जाएं और किसी को 4 दे दिए जाएं तो भी सेम है चॉकलेट का पीस, बट अब उसको लग रहा है कि मेरे पास 4 चॉकलेट्स आ गई हैं, बट इट इज एक्चुअली नथिंग बट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए एक तरीका क्या होता है, हमारे पास जो भी फ्रैक्शन है हम उसके अंदर सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाती है. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाली चॉकलेट है, किसी को उसका हाफ दिया या फिर किसी को 2 पार्ट्स दिए आउट ऑफ दीज 4, तो मतलब रीजन जो है दोनों के पास सेम रीजन है ना. लेकिन यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 2/4 है. उसी तरीके से जो एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2 का क्या रहेगा, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इज 3/6. ठीक है. ऑल राइट. सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. Now the method of finding equivalent fraction of the given fraction. So to find an equivalent fraction, multiply the numerator and the denominator of the fraction by the same non-zero number. And to find equivalent fraction, divide the numerator and denominator of the fraction by the same non-zero number which is a factor of both. है ना. चलिए, तो we multiply the numerator and denominator of 2/3/2 and we get 4/6.
सिमिलरली अगर जो 4/6 है, अगर हम उसको 2/2 से डिवाइड कर देते, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, वी विल गेट 2/3. Now you have to find equivalent fraction of 2/3 till 5th place. Till 5th place का मतलब क्या हुआ? 2/3 को पहले हमने 2/2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गई हमारी फर्स्ट, ये हो गई हमारी सेकेंड प्लेस. फिर देन and then ठीक है. So equivalent fraction of 2/3 till 5th place are these. Now checking equivalence of the fraction. अब हमें कैसे पता चलेगा कि दो given fractions जो हैं वो equivalent है या नहीं है? So multiply the numerator of the first fraction with the denominator of the second fraction and the denominator of the first fraction with the numerator of the second fraction. This is one of the method. Second is compare both the products. If they are equal, then fraction are equivalent, otherwise not. Or after simplifying the equivalent fraction, if we get the original fraction, then the equivalent fraction is correct. तो एक तो मेथड है हमारा ये कि जैसे कि सपोज है हमारा 2/3 और 10/15, क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है? हमें कैसे पता चलेगा? कि हम पहले ऐसे 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 10 से. सो दोनों तरफ हमारा आ रहा है 30. सो दैट मीन्स हमारा ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. ठीक है. सो वन वे इज दिस. व्हाट इज द अनदर वे? कि एक है हमारा 2/3, एक है हमारा 10/15. 10/15 को हम सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई का मतलब क्या हुआ कि इसको लोएस्ट टर्म्स में लेकर आएंगे कि वो उसके आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सके. सो इफ वी डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय 5, वी गेट 2/3. So we get the original fraction. That means it is an equivalent fraction. ठीक है. Now जब आपने 21/27 को सिंप्लीफाई किया तो 7/9 आया. That means 21/27 are the equivalent fraction of 7/9. Okay. If we have fraction with large numbers, that is numerator and denominator, then we will find equivalent fraction by division. तो अब हमारे पास सपोजिंगली बड़े नंबर्स हैं, 48/16 है, हमें इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं. तो बजाय इनके आगे निकालने के हम इनसे छोटे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं. सो हमें पता चल रहा है कि दोनों ही जो हैं वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों ही 2 के मल्टीपल्स हैं. तो हम क्या करेंगे? If we divide both of them by 2, what do we get? ठीक है. तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई 24/8. अब हमें एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, तो हम फर्दर इसको और 2 से डिवाइड कर सकते हैं. सो इट विल बी 12/4, है ना. तो नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये भी हो गई हमारी. अब हम इसको फर्दर और 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई. All right, so let's do this exercise 4.1 जहां पर you have to write equivalent fraction of the following by multiplication. तो चलिए 3/8 की हम लोग निकाल लेते हैं, बाकी का आप अपने आप ट्राई करेंगे. So 3/8 multiply by 2/2, that is 6/16. ठीक है. Now write an equivalent fraction of the following by division. 15/20 को आप डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे 5 से, तो 3/4. Find the equivalent fraction of the following fractions till the 4th place. 5/8, 10/16, 5/8, and 5/8. 32.
ठीक है, सो दिस इज 20/32। अब हमने फोर्थ प्लेस तक निकाल लिया है। चेक वेदर द पेयर ऑफ फ्रैक्शंस गिवन बिलो आर इक्विवेलेंट और नॉट। 2/3 and 8/12. Multiply 2/12 and 8/3. Both the sides we get 24. So yes, it is equivalent. Similarly, आप बाकियों का भी निकालेंगे. Change the following improper fractions into whole numbers. तो फर्स्ट वाला आपको सिंपल ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है. So 9 7s are 63. वैसे तो हमें टेबल्स आते ही हैं, तो हम होल नंबर्स में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी 7, दिस विल बी 7, दिस विल बी 5, 3. तो आप देखेंगे कि नीचे वाला जो नंबर है वो ऊपर वाले नंबर का क्या है, फैक्टर है ना. तो इसी तरीके से इसीलिए ये फटाफट से चेंज होता जा रहा है. एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. चलिए ले लेते हैं 2 1/8 को. क्या करना है हमको, 2 × 8 + 1 is equal to 17 और नीचे का डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी 17/8 हुई. बाकी के सेम मेथड से आप अपने आप करेंगे. नाउ ये तो बात हुई हमारी improper fraction, proper fraction, mixed fraction and equivalent fraction. Next type of fractions है हमारी like and unlike fractions. So like fractions वो होती हैं जिनका denominator same होता है. For example 2/3, 4/3, 6/3 and so on. ये सब क्या है, हमारी like fractions है क्योंकि denominator same है. Unlike fractions क्या होती हैं हमारी, जिसका denominator same नहीं होता. ठीक है. Now fractions having different denominators are called unlike fractions. For example, these. Now हम unlike fractions को like fractions में convert कर सकते हैं कैसे? So there is a very important process for this और वो आपको बहुत टाइम तक काम आने वाला है, तो हम बहुत ज्यादा उसको ध्यान से सुनेंगे. तो हमारे पास है 9/20, 7/10, 4/15 and 3/5. सबके ही क्या है, डिनोमिनेटर्स अलग हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस है. उसे लाइक में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सो द फर्स्ट स्टेप इज दैट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स. सो फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स. ठीक है, तो एलसीएम जब हम निकाल रहे हैं सबका 5, 2, 2 and 3. ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आया, 5 2s are 10, 10 2s are 20, 23s are 60. So our LCM here is 60. हमने नीचे कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया which is 60. तो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं लाइक फ्रैक्शन में. अब हमारा एक कॉमन डिनोमिनेटर आ गया 60. तो अब प्रोसेस क्या होता है कि हर डिनोमिनेटर से हम उसको करते जाएंगे डिवाइड 60 को, और जौन सा भी हमारा आंसर आएगा उस आंसर को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या आएगा, 60 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू 3, मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 27. तो यहाँ आ गया हमारा 27. सेकेंड 10, 60 divided by 10 is equals to 6 multiplied by 7, which comes out to be 42. Then 60 divided by 15 is equals to 4 multiplied by 4 is equals to 16. और ये कॉमा है हमारा, यहाँ पर क्या आएगा, 60 divided by 5 is equals to 12 multiplied by 3 is equals to 36. तो हमारी अब 4 फ्रैक्शंस कौन सी बन गई, 27/60, और ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी हैं. ठीक है, सो हमारी फ्रैक्शंस बन गई 27/60, 42/60, 16/60 और 36/60.
सो ये इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही हैं, बट अब हमने इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब हमारी लाइक फ्रैक्शंस आ गई ये। सो राइटिंग अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, a fraction is in the simplest form when it cannot be divided further or broken up further into smaller factors, ठीक है। So when numerator and denominator have no common factor than 1, मतलब ऊपर और नीचे वाला नंबर जब तक आपस में को प्राइम ना हो जाएं तब तक हम उसको कट कर सकते हैं। जब ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में को प्राइम हो जाएंगे, हमारा वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/5, 3/8, दे आर ऑल इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। In 1/2 there is no common factor of 1 and 2 except 1, ठीक है। अब देखते हैं 10/5, क्या 10/15 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं, क्योंकि इसमें अभी फैक्टर्स है कॉमन। कौन सा? 5 है। 5 3s are 15 and 5 2s are 10। अब 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1, so 2/3 is in the simplest form. Now for writing factors in the simplest form, there are two rules to follow. If the numerator and denominator can be divided by the same number, which is called common factor, जैसे अभी हमने इसका common factor 5 लिया, if at least one number in the fraction is a prime number, ठीक है। 6/8 को simplest form में करना है हमको, 2 being the common factor between both, so 3/4। 18/30 में क्या होगा? सबसे कॉमन फैक्टर्स इनमें जो है, हम सबसे छोटा नहीं लेंगे, हम थोड़ा बड़ा फैक्टर लेने की कोशिश करेंगे ताकि हमें कम डिवीजन करना पड़े। दोनों में 6 इज द कॉमन फैक्टर, 6 3s are and 6 5s are, so 3/5। If two fractions do not have the same lowest form, they cannot be equivalent fractions. Do you agree? Yes, we agree, because the जो सबसे lowest form किसी fraction की होगी, that should be the same, तभी वो हमारी equivalent fraction होगी। Now, comparing the fractions. Like fractions को compare करना बहुत easy होता है, क्योंकि उनका denominator same है, तो जौन सा numerator छोटा है वो fraction छोटी है, जौन सा भी numerator बड़ा है वो fraction बड़ी है। But in unlike fractions, to compare them, first we have to make them like and then compare them. For example, हमारा है 7/9 and 6/7, इनमें से हमें नहीं पता कि कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी fraction है। So now we will take their LCM. 9 और 7 में कुछ भी common नहीं है, so 9 multiplied by 7 is 63. Divide 63 by 9, that is 7. Now multiply 7 by 7. This is 49, and 63 divided by 7 is 9, multiplied by 6 is equals to 42, ठीक है। So 9 6 are 54, तो अब हमारा 7 7 49 था, तो this will be, जो 7/9 है वो actually 49/63 है, और जो 6/7 है वो एक्चुअली 54/63 है। एंड नाउ 63 एंड 63 की वजह से ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए, और 54/63 वाली फ्रैक्शन बड़ी है, सो 6/7 इज ग्रेटर दैन 7/9, ठीक है। Now, if two or more than two fractions have same denominators but different numerators, then the fraction which is greater numerator has greater value than the fraction. So basically जो like fractions हैं उसमें जो numerator अगर बड़ा है तो वो fraction बड़ी है, numerator छोटा है तो fraction छोटी है। Now, एक और हमारे fractions होती है comparison करने की, जहाँ पे numerator same है but denominator अलग है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जिसमें न्यूमरेटर जो है हमारा सेम है, डिनोमिनेटर हमारा अलग है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटी। सो 15/6 इज ग्रेटर दैन 15/7, ठीक है। उल्टा होता है इसमें।
Now, two fractions with different numerators and denominators can be compared by cross multiplication process also. तो एक हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस भी है अगर हमको पूरा एलसीएम वाला मेथड नहीं निकालना है, नहीं करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? सो नाउ व्हेन वी हैव टू कंपेयर 5/7 एंड 8/11, तो अब इसके अंदर जब हमें 7 और 11 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, दैट इज 77. ठीक है, नाउ 77 डिवाइडेड बाय 7 इज 11. 11 5s are 55. इसका मतलब 5 multiplied by 11. And here 11 divided 77 divided by 11 is 7. That means this. तो हम 8 को 7 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पर 56/77 वाला हमारा बड़ा आ रहा है फ्रैक्शन, तो 5/7 is lesser than 8/11. Arrange the following fractions in ascending order. Very important question. This is a very important concept also. क्या करना है हमको? Simply इनका हमको पहले LCM निकालना है. ठीक है, so let's find the LCM of all the denominators. 6, 9, 18 and 20. 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 6 are 18 and 20 because it is not getting divided by 3. 2 1 3 3 10, 3 1 1 1 and 10, and finally 10. Now 3 2s are 6, 6 3s are 18 and 18 10s are 180. So the LCM is 180. तो अब हम एक कॉमन एलसीएम सबका लिख लेंगे 180. 180 डिवाइडेड बाय 6 इज 30. 30 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 150. 180 डिवाइडेड बाय 9 इज 20. 24s are 80. This 180 divided by 18 is 10. 10 3s are 30. 180 divided by 20 is 9, and 9 multiplied by 13 is equals to 117. So हमारी fractions क्या बनी? 150 by 180, 80 by 180, 30 by 180 and 117 by 180. ठीक है, अब हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. असेंडिंग हमारा ये इसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, सो दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन ऑफ दिस वन. सो 3/18 सबसे छोटी हुई, फिर 80/18 मतलब 4/9, then 117/180 that is 13/20, and then at last 150/180 that is 5/6. ठीक है, so this is the answer. So हमें ऐसे ही निकालना है. Ordering fractions with like numerators, as the denominator gets smaller, fraction gets larger. तो अब जब numerator सबका same है, तो जिसका denominator छोटा है वो fraction बड़ी है, जिसका denominator बड़ा है वो fraction छोटी है. ठीक है, that is how you are going to arrange in ascending and descending order. चलिए, which write greater fraction from each of the following parts. तो अब इसके अंदर ये क्या है कि सिर्फ 2 वाले हैं. हम कर लेते हैं 3/10, 4/13. LCM is 130. So this is 39 and this is 40. So this one is greater. Alright, सेकेंड वाला दोनों में से हमें स्मॉलर फ्रैक्शन लिखनी है. इसके अंदर तो लाइक फ्रैक्शन है तो दिस वन इज स्मॉलर. अनलाइक वाले का देख लेते हैं हम बी पार्ट का. 12/13 या 5/11. सो लेट्स सी कि 13 11 का क्या होता है. 143 is our LCM and
So this 12 by 13 is greater and 5 by 11 is smaller. Arrange the following fraction in ascending and then descending order. Find the LCM first. अब इसमें सारे डिनोमिनेटर सिर्फ 5 है या 7 है, सो एलसीएम होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35. सो 35 डिवाइडेड बाय 5 7, 7 4s are 28. Similarly 35 divided by 7 is 5, 5 2s are 10. This will be 7, this will be 30, this will be 7 3s are 21. ठीक है, अब इसमें से असेंडिंग डिसेंडिंग हम लगा देंगे सिंपल कि 10 by 35, 7 by 35 is the smallest one. So 10 by 35 is 1 by 5, which is lesser than 10 by 35, 2 by 7, which is lesser than 21 by 35, which is 3 by 5, which is lesser than 28 by 35, 4 by 5, which is lesser than 30 by 35, that is 6 by 7. और इसको उल्टा 6 by 7 से 7 by 35 पे लगाएंगे तो that will be the descending order. ठीक है, चलिए. So you have to fill in the blanks with fraction in the lowest form in the following. 400 gram is a dash of a kilogram. So 400 divided by 1000, that is 2/5 of a kilogram. Now 3 hours is a dash of a day. तो 24 hours होते हैं. So 3 by 24, this is 1/8 of a day. 50 paisa is half of a rupee and 30 minutes is half of an hour. Now addition in fractions कैसे करते हैं हम addition? Like fractions में simple, अगर denominator same है तो बस numerator को हम add करेंगे दोनों को. जैसे 2 by 7 plus 3 by 7 है, so it will be 5 by 7. ठीक है. Now this is the pictorial representation कि वो 5 by 7 कैसे बना. When 2 or more than 2 unlike fractions are being added, such as 2 by 3 plus 1 by 4, what will we do? First we will convert them into like fractions by taking the LCM. ठीक है, तो जब हमने LCM निकाल लिया उसके बाद हम न्यूमरेटर्स को आपस में सबको ऐड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है? 1 by 4, 3 by 6 और 3 by 7 and 2 by 3 को हमें ऐड करना है. So let's take out the LCM of all three. $84 is the LCM and 84 divided by 4 is 21 plus if we divide 84 by 7, this is 12 and 12 3s are 36 plus 3, 84 divided by 3, it will be 28 and 28 2s are 56. ठीक है भाई, इन सबको हमने किया ऐड. 21 plus 36 plus 56, 12 and 13. Now 3 plus 3 is 6, 6 plus 5 is 11. So this will be 113 by 84. All right. So जैसे आपको 8 by 7 और 2 by 7 को करना है तो simply 8 plus 2 is 10. 10 by 7 will be the answer and you will convert it into mixed fraction which is 1 3 by 7. ठीक है. अब 3 by 5 और 16 by 18, 6 by 18 को आपको 3 by 16 plus 5 by 8. The LCM will be 16. ठीक है. So this will be 3 plus 10 is equals to 13 by 16, which is a proper fraction. तो mixed fraction में से convert करने का जरूरत नहीं है. Addition of mixed fraction, first we will convert them into improper
फ्रैक्शंस, और इम्प्रॉपर के बाद अगर दोनों के डिनोमिनेटर अलग हैं तो पहले हमें उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, फिर उनके डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकालने हैं और उसको फिर ऐड करना है, जस्ट द प्रोसेस जैसे हमने यहाँ पे फॉलो किया है। और नहीं तो एक और हमारा सेकंड वे है कि जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स को हम साथ में ऐड कर देते हैं और उसके बाद वी विल ऐड द रिमेनिंग फ्रैक्शंस, ठीक है, जैसे 5/6 + 3/16, और उसके बाद बस फ्रैक्शंस में क्योंकि वो अनलाइक हैं तो उनका हम निकालेंगे एलसीएम और उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एक लाइक फ्रैक्शन में, और फिर हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। सो एक मेथड 2 है हमारा जिसमें हमने 5/6 + 2 + 2 3/16 करना है। तो इसमें हमारे जो होल नंबर्स हैं इनको हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है, और जो फ्रैक्शंस हैं उनको सेपरेटली लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनको हमने सेपरेटली लिख लिया और इनके हमने नॉर्मल जैसे एलसीएम निकालते हैं वो हमने फाइंड आउट किया। सो 16 और 6 का एलसीएम विल बी 48। सो 48, 6 8 = 48, 8 5 = 40, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, सो प्लस 16 3 = 48 and 3 3 = 9, so this is 9 + 49/48। अब 49/48 हमारा क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। 48 1s are 48 and 1 is left, so this is 9 + 1 1/48। फिर से हमने होल नंबर को ऐड कर दिया तो आया 10 1/48, ठीक है, सो 10 1/48। ऑलराइट, चलिए, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। Whenever the fractions are like, we will just add the numerators, and जो numerator को add करके sum आएगा वो हमारा new numerator बना, denominator will remain the same. Now, changing the order of the group does not change the sum. अब हमारा जैसे यहाँ पे हमने ऑर्डर को चेंज करके देखा कि हमारे सम पर कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज 4.3। अब इसके अंदर आपको एडिशन करना है, सिंपल है, दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनफैक्ट सभी क्वेश्चंस लाइक फ्रैक्शंस के हैं, तो हम सिंपल न्यूमरेटर को क्या कर देंगे, ऐड, सो दिस विल बी 38/7। अब 7/5 + 0, किसी भी चीज में अगर 0 ऐड होता है इट विल बी fraction or the number itself. Again, all of these are the like fractions till f part. अब हम एक देख लेते हैं h part. So this is 5 + 3/4 + 1/2. 5 को भी अलग छोड़ देते हैं क्योंकि वो एक होल नंबर है। 3/4 + 1/2 देखते हैं। So 4 3 2 and this will be 5/4 and the answer will be 5/4. All right? अब सब्ट्रैक्शन कैसे होगी फ्रैक्शंस की? जब लाइक फ्रैक्शंस हैं तो सिंपल आपको न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है एंड यू विल गेट द आंसर। कि आपको जब ये सब्ट्रैक्ट करना है द आंसर विल बी 7/-2/15, दैट इज 5/15 कन्वर्टेड इनटू लोएस्ट टर्म 1/3। सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स का हम लेंगे एलसीएम और उसके बाद उनको बनाएंगे लाइक फ्रैक्शन और फिर बड़ी फ्रैक्शन में से छोटी फ्रैक्शन को करेंगे माइनस। अब मिक्स्ड फ्रैक्शंस में क्या होगा, पहले जो होल नंबर है उसको होल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो बची हुई हमारी फ्रैक्शन है उसको लाइक में कन्वर्ट करके फिर वो नॉर्मली जैसे सब्ट्रैक्शन होती है हम वैसे ही कर लेंगे। नाउ सो इन एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट का ए पार्ट देख लेते हैं। दोनों ही लाइक फ्रैक्शंस हैं हमारी, तो डिनोमिनेटर में 13 ही आएगा एंड 6 - 4 is 2, सो द आंसर इज 2/13। अनलाइक फ्रैक्शन एक बारी देख लेते हैं, 9/11 - 10/22, सो इट विल बी 22 and 9 2s are 18 -
10 दैट इज 8/22 और इसको हम लोएस्ट टर्म में करेंगे 2 4s are 8 and this is 11 so the answer is 4/11 ठीक है। नाउ आपको फाइंड द डिफरेंस करना है। चलिए किसका करते हैं हम, इसका करते हैं। सिंपल है ये वाला, एक फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है, सो दिस विल बी 3 9/23 क्योंकि 8 - 5 is 3। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं, इसके अंदर हमारा जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड द आंसर। फॉर एग्जाम्पल हमको अभी मल्टीप्लाई करना है 18 को 2/3 से। अब इसके अंदर हम कर सकते हैं ऐसे कि 18 2s हमारा होता है 36/3। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, 3 1s 3 एंड 3 2s, सो द आंसर इज 12। अदरवाइज हम एक और चीज कर सकते थे कि यहीं पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते थे। जब भी कोई भी डिनोमिनेटर किसी भी न्यूमरेटर का फैक्टर होता है तो हम यहीं पे इसको कट कर सकते हैं, 6 2s 12। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको कट करके दिखा भी रखा है। इट टेक्स 2/5 yard. We are doing this example. It takes 2/5 yard of material to make a shirt. How many yards will it take to make 6 shirts? तो बेसिकली हमें एक शर्ट में 2.2/5 लगता है, 6 में कितना लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 6, तो दिस विल बी 12/5। We will convert it into mixed fraction which is, अब हमारे पास है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 7/11, बस इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दिस विल बी 21/44। चलिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल गिवन है, प्लीज गो थ्रू विद दिस, वी विल डू फ्रॉम द एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में हम सी पार्ट देखते हैं कि 18 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 है, तो अब या तो सिंपल आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर 2 को कट कर लीजिए। 18 को 2 से कट करेंगे तो 9, आंसर इज 27। सिमिलरली लेट्स डू जी पार्ट, 4/10 मल्टीप्लाइड बाय 12/8। लेट्स सी कि कहां पर क्या कट हो सकता है। 4 1s 4, 4 2s 8, 2 1s 2 and 2 6s 12, 2 3s 6 and 2 5s 10, सो आंसर इज 3/5। हमें पूरा ऐसे मल्टीप्लाई करने का जरूरत भी नहीं पड़ा, हमने जब सबको सिंप्लीफाई किया, सबको एक दूसरे से कट करना शुरू किया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर्स को, वी गॉट आवर आंसर। नाउ राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। चलिए इसका करके देखते हैं। सो दिस इज 4 9/20 मल्टीप्लाइड बाय 4 1/16, तो 24s 80 and 80 plus 9 is 89/20 multiplied by 16 4s 64 plus 1 65/16. So these are getting cut. 5 4s and 5 13s. ठीक है? Now anything else that is getting cut? No. Now we will multiply 89 by 13. 9 3s 27, 8 3s 24 plus 2 26 and then 0 9 and 8 plus 7 15. This is numerator is 1657 by 16 4s 64. Now you are going to convert this into mixed fraction by dividing 1657 by 64। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है सिंप्लीफाई का, 3/4 ऑफ दिस एंड दिस। सो ऑफ का मतलब होता ही मल्टीप्लीकेशन है, सो कुछ नहीं है, ऑफ की जगह बस मल्टीप्लीकेशन का हम साइन डालेंगे और सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ लेट्स डू द चैप्टर बैकअप। चैप्टर बैकअप में आपके लिए रिविजन दी गई है, पूरे फ्रैक्शन चैप्टर में से हमने बहुत इसका प्रैक्टिस किया है, साथ में एलसीएम फाइंड करने को, मल्टीप्लाई करने को, डिवाइड करने को, सब्ट्रैक्ट करने को, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में, एंड सो ऑन, असेंडिंग डिसेंडिंग एवरीथिंग। सो लेट्स से दैट ट्रू और फॉल्स आपको लिखना है कि क्या इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा,
Yes, answer will be 1. This is true. तो आप बाकी का सब ऐसे ही करेंगे. इसका आंसर जो है वो फॉल्स होगा क्योंकि बीच में एक आ गया 0. एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, है ना. चलिए, सो यहाँ पे आएगा फॉल्स. नाउ यू हैव टू डिवाइड द फॉलोइंग दिस बाय दिस. इसका क्या मतलब हुआ? 20/39 डिवाइडेड बाय 40. अब डिवाइडेड बाय 40 का मतलब क्या होता है? हम इसको मल्टीप्लिकेशन में भी चेंज कर सकते हैं. 20/39 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे 1/40. ठीक है. तो जैसे ही हमने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा. नाउ वी कैन जस्ट cut it and the answer will be 1/78. इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, सी वाला. 10 4/9 डिवाइडेड बाय 2 1/8. पहले हम इसको वो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं. दिस इज 94/9 डिवाइडेड बाय 17/8 और 94/9 मल्टीप्लाइड बाय 8/17. ठीक है. चलिए, बस अब सिंपल आप न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर. Fill in the blanks. What divided by 1 is equal to 8/9? 8/9 divided by 1 is 8/9. यहाँ पर 1, यहाँ पर 8/9. ठीक है. तो अब हमारे पास है कि सपोज f वाला पार्ट है कि 4/5 को हम किस से डिवाइड करें कि हमारे पास 24/5 आ जाए, है ना. तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? 24/5 divided by 1 is equals to 24/5. All right. So write the reciprocal of given numbers. Numerator को denominator, denominator को numerator बनाना है. That is the reciprocal. Now cost of 1 kg of grapes is 60 and that of 1/4 kg of chocolate is this. Find the cost of 1 kg of each together. तो यहाँ पर हमें 1 kg of grapes का दे रखा है और यहाँ 1/4 kg का दे रखा है. हमको पहले 1 का निकालना है. तो 1/4 kg का मतलब हुआ हमारा 5/4 kg का जो रेट है वो है हमारा 254/5 रुपीज. ठीक है. तो 1 kg का क्या होगा? 254/5 divided by 5/4, or we can say 254/5 multiplied by 4/5. So the answer is 1016/25. अब 1 kg ऑफ सिरप का इतना प्राइस है और 1 kg ऑफ ग्रेप्स का दे रखा है हमें, तो इसमें हमने +60 कर देना है. ठीक है. आप इन दोनों को ऐड करके फिर इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करके यू विल फाइंड द आंसर. Now Madhav runs on a track every day. If he runs 2/4 kilometer in morning and 3/4 kilometer in evening, then how much distance does he run? Did he run more than 1 kilometer or not? So 2/4 plus 3/4 is equals to 5/4, which is not more than 1 kilometer. So these are the practical based questions that you are going to do yourself in the maths laboratory with your teachers, friends, parents. Maybe you can do at home and have fun with the chapter of fractions. So till then, keep learning, keep shining. Bye-bye.